Greetings of the day, student. So today we are beginning with a new chapter, introduction of C programming or beginning of C programming. Last time what we did was two things, I guess, algorithms and flowchart. Basically, main were two things. Before that, we discussed decomposition of any program or any solution, right? So there were the main things. I hope you will keep revising it, whatever we study. So from today onwards, we'll study about the C programming. We have done basics of computation. We have done, how things are solved in computation, right? And history of computers. Now we are beginning with C programming. Okay. So this is our second chapter officially. So if we start with history of C, so it is a widely used programming language basically. C is a very widely used programming language. It is associated with Unix operating system. Now, Unix is an operating system. We know Windows and Mac and other things, right? These are operating systems. So, Unix is a popular operating system which was, developed at AT&T Bell Laboratory, and Unix was developed using C. As you can see, it was written in C programming language. So, C was basically a programming language that was not known until they wrote Unix operating system. That was very basic C, earlier version of C. And when they officially announced C as a programming language, then they said that it was, developed in, that was used in Unix operating system. Right? It was done around 1969. And main founder of C is known as Dennis Ritchie. But Unix operating system was developed by both Dennis Ritchie and Ken Thompson. So if someone asks that Unix operating system would develop Unix operating system, then we have to say two names, Ken Thompson and Dennis Ritchie, right? But who developed C? Then we just have to spell the name of Dennis Ritchie. So Dennis Ritchie is the founder of main C programming language. Where it was found? It was found at AT&T Bell Laboratory, right? So yes. So what was the motivation behind the developing C language? The motivation was develop an operating system which is portable. Portable in the sense which worked on so many devices or with program worked on so many other electronic devices. Okay, so idea of C came from a language called B. इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे हुआ? नेमिंग कन्वेंशन कैसे हुआ? पहले कोई लैंग्वेज थी BCPL, बेसिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और B लैंग्वेज, ओके, बेसिक लैंग्वेज, and then it converted to B language, and then we came to C language. So and earlier there was a language called A language. If I have to mention it clearly, before that there was a language called A language before development of these two languages. So this is a basic naming convention which has been followed sequentially. Sequentially follow होता आ रहा है, पहले A नाम की लैंग्वेज थी, फिर उसमें से BCPL बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हुई कोई, उसके बाद B लैंग्वेज नाम की क्रिएट थी, देन डेवलप्ड C. सो एक नेमिंग कन्वेंशन उसने क्यों चुना? क्योंकि वो बेसिकली आता आ रहा है प्रोग्रामिंग के लिए. दैट्स व्हाई दे चूज दैट नेमिंग कन्वेंशन. ओके. Moving forward, what are some features of C? First of all, it is a procedural language. Procedural language का मतलब क्या होता है? हमने दो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म पढ़े थे, OOP और POP. Yes, OOP stands for Object Oriented Programming and POP stands for Procedure Oriented Programming. तो Procedure Oriented Programming हम क्यों यूज करते थे? कहाँ यूज होता था? C में यूज होता था. OOP कहाँ यूज होता था? जावा में यूज होता था, राइट? दोनों के एग्जांपल हमने देखे थे प्रिपेयरिंग मैगी प्रॉब्लम में, या सो वो हमारा बेसिक एग्जांपल था सी. सो सी में चीज़ें कैसे होती है? प्रोसेस से होती है. सी में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हाईलाइटर, यस. सो इट इज़ इजी टू एक्सटेंड. हम उसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. उसके प्रोग्राम लिखा हुआ प्रोग्राम है वो कहीं और यूज़ कर सकते हैं और स्टिल उसको अच्छे से डेवलप भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. बेसिकली पोर्टेबल है, एक मशीन में से अगर दूसरी मशीन में प्रोग्राम ट्रांसफर करते हैं तो दूसरे मशीन में सी कंपाइलर होगा तो प्रोग्राम चलेगा, और दूसरी लैंग्वेज में भी अगर हमें सी प्रोग्राम यूज करना है तो वी कैन यूज दैट प्रोग्राम. And then we have middle level language. C is a middle level language, not purely higher level language according to author. So if you will read the old books, अगर आप ओल्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें कहा होगा कि सी हायर लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि तभी इतनी लैंग्वेजेस सी की कंपैरिजन में थी नहीं कि जो मशीन के करीब हो.
यानी कि मशीन से ह्यूमंस के करीब हो। और अब जैसे जैसे हायर लेवल लैंग्वेज डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे सी की लैंग्वेज का लेवल है जो वो मशीन की तरफ जा रहा है, यानी कि वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, वो मशीन के अंडरस्टैंडेबल से, उसके कन्वर्जन से थोड़ी ही दूर है, राइट। उसमें कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि आप उसके बिटवाइज ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जो सी को प्योर हायर लेवल लैंग्वेज नहीं बना सकता। ओके, एंड इट हैज़ लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस, उसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है। हमने अगर लैब की बात करें तो ऑलरेडी दो लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हुई है, stdio.h और conio.h। then we have math.h, stdlib.h, and there are so many other libraries, right? So it is very fast and efficient basically. Okay, it is a modular language. You can divide your thing into smaller parts. Divide and conquer approach we just studied in last ppt, right? So modular है, उसको आप छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके कोई बड़ा फंक्शन बना सकते हैं। वो स्टेटिकली टाइप्स यूज होती है, उसको प्रोग्रामिंग के टाइम कोई भी चेंजेस करना है, वो प्रोग्रामिंग रन करते टाइम कोई चेंजेस करना अलाउड नहीं होता। सो वो स्टेटिकली टाइप है, प्रोग्रामिंग करने से पहले, उसको रन करने से पहले उसको टाइप कर देना पड़ता है। और जनरल पर्पस लैंग्वेज है, काफ़ी सारे पर्पस में यूज होती है, जैसे कि बैक एंड, फ्रंट एंड, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग, काफ़ी सारी जगह पे सी यूज होती है। सो वो जनरल पर्पस है। उसमें रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, जैसे कि मैंने बताया उसमें बिटवाइज ऑपरेटर है, उसकी वजह से वही वो मिडल लेवल लैंग्वेज है। तो उसमें काफ़ी सारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलर डिवीजन, जो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे डिटेल में, पर उसमें रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं ऑलरेडी। ओके, सो अगर वर्ड्स में बात करें, सेम पिक्चर में जो हमने पढ़ा वो सेम ही चीज़ें हैं। ओके, सो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? इट इज पोर्टेबल, और प्रोसीजरल लैंग्वेज है, पीओपी है, ओओपी नहीं है। उसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं कुछ, जो कहाँ देखने मिलते हैं सिर्फ, विच आर नॉट सीन इन द हायर लेवल लैंग्वेज, जो मिडल लेवल में या तो लोअर लेवल में देखने मिलते हैं। ओके, मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर का मतलब जैसे मैंने बताया, उसको प्रोग्राम को डिवाइड किया जा सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, और अकॉर्डिंग टू ऑथर जो जब भी बुक लिखी गई है उसके हिसाब से सी है वो फुली हायर लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ते हैं तो हो सकता है उसमें सी को फुली हायर लेवल लैंग्वेज बताया गया हो, क्योंकि तब मशीन से इतनी दूर रहने वाली, यानी कि मशीन से कन्वर्ट कन्वर्ट करते करते मशीन तक पहुंचने वाली इतनी लैंग्वेज कोई थी। ओके, हमने हायर लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लोअर लेवल लैंग्वेज क्या होता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आगे के वीडियोस में। सो रिफर टू दोज वीडियोस इफ यू वांट टू नो व्हाट इज हायर लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लोअर लेवल लैंग्वेज। अगर क्विकली मुझे बताना है तो जो लैंग्वेज मशीन के करीब है, यानी कि उसको बहुत कम बार कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन के अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्मेट में पहुंचने के लिए, दैट इज लोअर लेवल लैंग्वेज। और जो मशीन से दूर है, यानी कि जो यूजर के करीब है और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही बार इंटरमीडिएट कन्वर्टर्स का यूज करना पड़ता है, उसको हायर लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, सो दैट इज हायर लेवल लैंग्वेज एंड लोअर लेवल लैंग्वेज। सो सी प्रोग्राम कैसे लेके जाते हैं? फॉर्म ऑफ फंक्शंस में। वो मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर लैंग्वेज है, इसीलिए उसके प्रोग्राम को फंक्शंस के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, राइट, मूविंग फॉरवर्ड। सो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है सी प्रोग्रामिंग का? कुछ इस तरीके का बेसिक सी प्रोग्राम है। हेलो वर्ल्ड से हम हर एक प्रोग्राम, जनरली कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तब आप देखेंगे कि प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होता है। एक नेमिंग, एक कन्वेंशन है, एक प्रथा है कि जिसने भी पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की होगी उसने पहला प्रोग्राम कौन सा लिखा होगा? हेलो वर्ल्ड का। तो तब से लेकर आज तक सब लोग फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा लिखते आ रहे हैं? हेलो वर्ल्ड का। सो यू कैन कॉल दिस अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है स्टेटमेंट, वॉइड में। ओके, सो वॉइड में बेसिकली स्टेटमेंट क्या है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से होता है, स्टार्ट होता है। आपको प्रोग्राम 5 लाइन का है, 50 लाइन का है या 500 लाइन का है, ऑलवेज योर कंपाइलर will look for a void main line to start your execution. ओके, हमने पहले भले ही इंक्लूड स्टेटमेंट पहले लिखे हों दिस एंड दिस, बट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा void को ढूंढता है कि void main या मेन फंक्शन कहाँ है, इंटीजर मेन, where are my functions so that I can start my execution. ओके, सो उसका पहला एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कौन सा होगा? वो प्रोसीजरल है तो प्रोसीजर फॉलो करेगा। सो स्टेटमेंट नंबर 6 उसका पहला एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा, उसका नाम क्या है? क्लियर स्क्रीन। सो क्लियर स्क्रीन क्या है आगे जाके देखते हैं। ये रहा क्लियर स्क्रीन, डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर स्क्रीन क्या है? एक फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप पहले वो व्यक्ति नहीं है जो आप वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपके पहले कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठे हो, उन्होंने कुछ प्रोग्राम रन किए हो, तो उसके प्रोग्राम
प्रीवियस आउटपुट्स हैं वो स्क्रीन से क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, सो प्रीवियस आउटपुट को अगर स्क्रीन से क्लियर नहीं करने पड़ेंगे तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमें वो डंप कर सकते हैं या हमारी चीज़ों को फ्लैश कर सकते हैं, राइट। सो हमें अपनी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, प्रीवियस को क्लियर करना पड़ता है। उसकी डेफिनेशन किसके अंदर है, कॉन्वेयर डॉट एच के अंदर है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मूविंग बैकवर्ड, हमने कौन सा पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, वाइड मेन के अंदर पीएस में। ये दो स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं, हम धीरे धीरे जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सो पहला हमारी चीज क्लियर हो गया कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, कॉन्वोल्यूटेड फंक्शन के साथ, यानी कि इसकी डेफिनेशन है, क्लियर स्क्रीन कैसे यूज करते हैं, वो उसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि क्लियर स्क्रीन के बाद दो नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं, दो नॉर्मल ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन है। ये सारी चीजें हैं वो कहाँ लिखी हुई है, conio.h फाइल में। इसीलिए मुझे एक फाइल इनपुट करनी पड़ेगी कि इसकी डेफिनेशन है वो conio.h में है। सो आई यूज हैश इनटू conio.h। ओके, तो इस फंक्शन का डिपेंडेंसी कहाँ पे है, लाइन नंबर 2 में, इसीलिए हम conio.h यूज करते हैं। नाउ printf hello world, printf फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन पर मैसेज दिखाने का काम करता है। ओके, सो विल मूव ऑन टू printf फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन है, उसका सिंपल काम क्या है, शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सो हमें आउटपुट में क्या दिखाएगा, जो भी मैसेज हमने टाइप किया है वो हमें कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट में दिखाएगा। जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे हमें मैसेज में क्या दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड। हमारा पूरा प्रोग्राम में हमने एक ही चीज़ की है हुई है, सिर्फ प्रिंटफ में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यानी कि हमारा टास्क एक ही है कि हमें हेलो वर्ल्ड परफॉर्म करना है। पहला टास्क था क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने का, जो उसने कर दिया है। बाद में उसने 8th नंबर की लाइन में चीज लिखा हुआ है, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ है, एज यू कैन सी। ओके, सो और ये इसकी डेफिनेशन कहाँ है, प्रिंटफ हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है फंक्शन, वो ऑलरेडी फंक्शन बिल्ट इन है जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन कहीं पे स्टोर होगी। तो उसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, stdio.h में। सिमिलरली हम दूसरी फाइल यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, उसका भी इंक्लूड करने का रीज़न क्लियर हो गया है। क्यों हम इंक्लूड करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन किसके अंदर है, stdio.h फाइल के अंदर है, प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, सो एक बार और देख लेते हैं वाइड मेन। वाइड मेन की बात तो हमने की है कि हमारा फंक्शन का स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, वाइड है वो रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन की। वाइड का मतलब होता है कुछ नहीं, नल। ओके, सो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा नहीं है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग। फंक्शन क्यों रिटर्न करता है, कुछ क्या होता है, वो हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे, पर अभी हम याद रखेंगे कि वाइड मेन का मतलब होता है फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग। वो हमारे प्रोग्राम के हेडिंग के जैसा है, राइट। सो आफ्टर मेन फंक्शन होल प्रोग्राम इज इंक्लूडेड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, राइट। मेन के कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, आर्गुमेंट्स मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट्स है उसके बीच में हम कुछ लिखते नहीं है। एज यू कैन सी मेन फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर कुछ मैंने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। ओके, वो हम एम्प्टी रखते हैं, राइट, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो इट हैज नो आर्ग्यूमेंट, और उसका फंक्शन का स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से होता है, एंडिंग भी कर्ली ब्रेसेस से होता है, दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में एवरीथिंग इज इनसाइड। हम सारे स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन लगा रहे हैं, एज यू कैन सी सेमीकोलन, सेमीकोलन और सेमीकोलन। और मेन है वो हमारे फंक्शन का हेडिंग है, सो इसके पीछे मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा। इट इज हेडिंग, our function starts from there, so we are not putting semicolon. Okay, now last but not the least, what is it, get ch। get ch का मतलब होता है get character। यस, get ch हम स्पेसिफिकली एक ही कंपाइलर के लिए लिखते हैं। कौन से कंपाइलर के लिए, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर के लिए। क्यों, क्योंकि वो पुराना कंपाइलर है थोड़ा, इसीलिए हमने कंप्यूटर को दो टास्क दिए हैं, 6 और 8। क्लियर स्क्रीन करो और हमें हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करके दो। सो कंप्यूटर को क्या लगता है कि दो टास्क कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्टली शट डाउन प्रोग्राम को कर सकता है। सो वो क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन करेगा, मुझे हेलो वर्ल्ड से इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले करेगा, और ये स्क्रीन जो हमें आउटपुट में दिख रही है वो फ्लैश होकर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपने दोनों टास्क कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो अपने आप प्रोग्राम को शट डाउन कर देगा। पर हमें प्रोग्राम को अपने आप शट डाउन होने देना नहीं है, इसीलिए हम कौन सा फंक्शन लिखते हैं, गेट सी एच। गेट सी एच का फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर। ओके, सो गेट कैरेक्ट फंक्शन है वो वेट करता है कि आउटपुट स्क्रीन पे आ गया है, स्टिल आउटपुट स्क्रीन से जा नहीं रहा है। आउटपुट कब स्क्रीन से जाएगा, जब उसे कोई कैरेक्टर मिलेगा, जब हम एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, तब जाके आउटपुट स्क्रीन में से जाएगा। ओके, सो हमने ये स्टेटमेंट्स की बात की है कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल डू इज विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर दीज कमेंट्स एंड व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दोस कमेंट्स। ओके, yeah, we'll discuss this in the next video. Greetings of the day, students. So we were just discussing structure of a C program.
we already discussed few things, right? That starting of the function is always from main, void main. Okay, we will start our function from here. Then what is the first task we do? We clear screen. हमारे फंक्शन का नाम है क्लियर स्क्रीन, बट हम उसको लिखते कैसे हैं? CLR normal bracket open, normal bracket close, and then semicolon. This sign here is called semicolon. Okay, ये साइन इसको semicolon कहते हैं. हम क्लियर स्क्रीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स अगर किसी ने रन किए हैं प्रीवियस यूजर ने, तो उसको हमें स्क्रीन पे से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आउटपुट हमारे आउटपुट के साथ क्लैश हो सकता है, राइट? और ये इंक्लूड स्टेटमेंट हम ऊपर लिखते हैं और वो किसी ना किसी स्टेटमेंट की डेफिनेशन कैरी करते हैं. हमने बताया था क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशन कौन कैरी करता है? conio.h. और printf की डेफिनेशन कौन कैरी करता है? stdio.h. ओके, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, पर ये चीजें उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्रैक्टिकल सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, और जो घर से थियरी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न योर फर्स्ट सी प्रोग्राम वेरी वेल. ओके, सो stdio.h किसके साथ एसोसिएटेड है? printf फंक्शन के साथ, जो कि क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है? हेलो वर्ल्ड. और मैसेज किस तरीके से लिखते हैं? printf normal bracket open, double quotes, message, double quote complete, normal bracket complete, and then we have semicolon. Every statement in C contains semicolon, as you can see. मैं सब semicolons को हाईलाइट कर रहा हूँ. ये C के अंदर के नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, ये कोई भी हेडिंग्स नहीं है. हेडिंग्स इज एक्चुअली हेडिंग नाम का कुछ चीज C में होता नहीं है, पर आई हैव मेड अप अ वर्ड कि हेडिंग है, जो ब्लॉक हेडर्स है उसमें कभी सेमीकोलन नहीं होता है. हमारा ब्लॉक कौन सा है? जनरली कोई भी ब्लॉक होगा C में वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, जनरली कोई भी ब्लॉक. सो ये दो जो मेन ब्लॉक के कर्ली ब्रेसेस है वो ये है, और दो कर्ली ब्रेसेस के ऊपर हमेशा हेडिंग होगा. तो हमारा हेडिंग क्या है? फॉर वाइल वॉइड मेन. हमारे लिए अभी एक ही हेडिंग है जो एक मेन ब्लॉक के अंदर है, मेन ब्लॉक के ऊपर की साइड है, जिसका नाम है वॉइड मेन. तो वॉइड मेन है वो हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग के पीछे कभी सेमीकोलन आएगा नहीं. एज यू कैन सी हियर, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, वहां पे कोई सेमीकोलन नहीं है. सो हेडिंग में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा. बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स है मेन फंक्शन के अंदर सब सेमीकोलन आएगा. ओके, और गेट सी एच की डेफिनेशन भी कहाँ पे है ऑलरेडी, किसके साथ एसोसिएटेड है? ये डेफिनेशन भी एसोसिएटेड है ये stdio.h के साथ. ओके, सो ये इनपुट आउटपुट फंक्शन है. stdio.h का फुल फॉर्म क्या होता है, conio.h का फुल फॉर्म क्या होता है, we'll see that in after couple of slides. बट इसको क्या कहते हैं? प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियरी पर्सपेक्टिव. जो मैंने इस साइड लिखा हुआ है वो थियरी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कहते हैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव. ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है. जैसे दिस इज कमेंट. ओके, कमेंट क्यों यूज होते हैं? दो डेवलपर को जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तब हम कमेंट्स यूज करते हैं. जैसे कि लेट्स से वी आर डेवलपिंग अ वेरी बिग प्रोग्राम, और लेट्स से वेरी बिग गेम, कोई फर्स्ट पर्सन शूटर वाली गेम है, तो जब हम डेवलप कर रहे हैं तो मुझे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. किसी ने मैप बनाया होगा, किसी ने वेपन्स बनाए होंगे, किसी ने प्लेयर मूवमेंट बनाई होगी, किसी ने एनिमी मूवमेंट बनाई होगी. तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ फोन कम्युनिकेट नहीं करते हैं. वो अपना प्रोग्राम कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें दो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं. एक तो सिंगल लाइन कमेंट सेक्शन में छोटी छोटी कमेंट्स कि जो एक एक लाइन के लिए यूजफुल हो, या कोई अल्टरेशन हो रहा हो, कोई एक्सेप्शन आ रहा हो, वहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स यूज होती है. और जो वहाँ जहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए वहाँ पे कौन सी कमेंट्स यूज करते हैं? मल्टी लाइन कमेंट, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है. एज यू कैन सी हियर इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट्स. ओके, सो दो कमेंट्स में डेवलपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सो कमेंट सेक्शन है वो बहुत ही एक्सक्लूडेड सेक्शन है, वो प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा. आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोएम भी लिख सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन के अंदर वॉट एवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन राइट डाउन योर नेम. जनरली व्हाट प्रोसीजर वी फॉलो इज, हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? अपना नेम, रोल नंबर, बैच नंबर और अपना सब्जेक्ट. ओके, इतनी सारी चीजें हम अपने कमेंट्स में लिखेंगे, राइट? सो ये हमारा सिंपल फर्स्ट सी प्रोग्राम है. इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा. पहला हमने तीन ही टास्क दिए हैं इसमें. टास्क कहाँ पे लिखे हुए? 6 नंबर में. ये हमारे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है. कमिंग हियर टू 1 and 2. ओके, पूरे प्रोग्राम को समझते हैं एक बार क्विकली. 1 and 2 हमारे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है. वो हमारे लिए कोई टास्क नहीं है, उसमें डेफिनेशंस होंगी फंक्शंस की. क्लियर स्क्रीन है, डेफ है, गेट सी एच है, तो वो हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं कि अगर डेफिनेशन कोई फंक्शंस की चाहिए तो आप वहाँ पे जाके ले लीजिए. ओके, फिर वाइड मेन है, वो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है. हार्ट है,
वो स्टेटमेंट है वो हमारे प्रोग्राम का जो 4th नंबर स्टेटमेंट है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सो उसे ध्यान से याद रखेंगे विदाउट एनी एरर्स। ओके, एंड देन वी आर बैक एट ओपन। पहला टास्क है क्लियर स्क्रीन, पहले पुरानी स्क्रीन क्लियर करो। दूसरा टास्क है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। और तीसरा टास्क है कैरेक्टर जब तक कोई एंटर ना करे तब तक आउटपुट को स्क्रीन पर रहने दो। ओके, गेट सी एच का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। फाइन, सो हमारा मेन टास्क एक ही था। ओके, पहले उसने स्क्रीन को क्लियर किया होगा अगर स्क्रीन पर आउटपुट होगा तो। ओके, फिर उसने क्या प्रिंट किया होगा, हेलो वर्ल्ड। नाउ इट इज वेटिंग फॉर अस टू प्रेस अ की सो दैट इट कैन रिमूव हेलो वर्ल्ड। ओके, सो व्हेनेवर वी विल प्रेस अ की आउटपुट स्क्रीन पे से रिमूव हो जाएगा। ओके, सो वाइड मैन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्लियर स्क्रीन पे ऑलरेडी फंक्शन डिस्कस कर लिया है। क्लियर स्क्रीन का शॉर्टकट है CLR स्टैंड फॉर क्लियर, SCR स्टैंड फॉर स्क्रीन। ओके, प्रिंटफ फंक्शन में डिस्कस कर लिया है। गेट ch इज फॉर गेट कैरेक्टर। ओके, वो कैरेक्टर लेने के लिए यूज होता है। दोनों फंक्शन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन है। ओके, इसीलिए वो stdio में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में। ओके, सो ये हैश इनपुट है वो क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मुझे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि मैं प्रोग्राम में क्या क्या चीजें यूज करने वाला हूँ और उसकी डेफिनेशन कहाँ है। जैसे कि मैं प्रोग्राम में एडिशन साइन यूज करने वाला हूँ, तो एडिशन की डेफिनेशन है वो मुझे कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी। कंप्यूटर को नहीं पता कि प्लस साइन किसके लिए यूज होती है, ओके, माइनस साइन किसके लिए यूज होती है, वो मुझे डेफिनेशन कहीं सी प्रोग्रामिंग के कंपाइलर में स्टोर करनी पड़ेगी। सिमिलरली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ऐसी फाइल दी जाती है जिनकी डेफिनेशन कहीं पे स्टोर है। जैसे कि मेरी एक फाइल है stdio.h। तो stdio.h का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर std। चूज अ पेन। std है वो किसका फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड का। और पीछे मैंने लिखा है IO। IO stands for input and output. In computer language, IO stands for input and output. So stdio। और हेडर फाइल है, हेडर फाइल का मतलब क्या होता है कि हम उसका एक्सटेंशन क्या देंगे, .h। So .h extension stands for sorry हेडर फाइल। राइट, और सिमिलरली .h एक्सटेंशन है तो किसके लिए है, हेडर फाइल के लिए है। IO है तो IO stands for input output, and we have CON। CON stands for कंसोल। ओके, सो इस तरीके से उसका चीजों को डिवाइड किया गया है। सो कंसोल डॉट एच एम फाइल किसके लिए यूज करते हैं, CLR SCR के लिए। पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम यूजिंग माउस टू राइट इट डाउन। ओके, सो ये हम CLR SCR फंक्शन में यूज करते हैं, ब्रैकेट्स। और ये हम कौन से दो फंक्शन के लिए यूज करते हैं, printf और getch, दिस वन std.h फाइल। ओके, सो ये हमारे इंक्लूड स्टेटमेंट्स है जो हमें देखनी है। ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हमें देनी चाहिए, लेट मी चूज अ हाइलाइटर। ओके, सो तुम्हारी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, एवरी स्टेट स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। ओके, ओके, विदाउट फंक्शन हेडर और ब्लॉक हेडर्स। कोई भी ब्लॉक है उसके हेडिंग के अलावा सारे स्टेटमेंट किससे खत्म होंगे, सेमीकोलन से। मेन प्रोग्राम किसके अंदर लिखा जाएगा, ब्रेसेस के अंदर। और एक गुड प्रैक्टिस है कि इंडेंटेशन फॉलो करो। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन मतलब प्रॉपर जगह छोड़ना। अगर आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है तो उसमें ब्रैकेट किया हुआ है, फिर ब्रैकेट के बाद हर एक स्टेटमेंट के आगे कुछ पर्टिकुलर जगह है, कैन यू सी, एक सेम जगह छोटी हुई एक टैब। ओके, सो इसे इंडेंटेशन कहते हैं। व्हेनेवर यू राइट अ सी प्रोग्राम, गुड प्रोग्रामर ऑलवेज फॉलोज इंडेंटेशन, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ओके, और कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। दो डेवलपर एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है। अपना प्रोग्राम ऑलवेज गुड कमेंट्स के साथ होना चाहिए। ओके, कमेंट्स है वो किसे अफेक्ट नहीं करती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं करती है। ओके, और उसका आउटपुट भी कभी स्क्रीन पे आता नहीं। अगर कमेंट में मैं इवन पोएम लिख दूं या कोई बड़ा सा ऐसे लिख दूं फिर भी उसका आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो किसी भी तरीके से प्रोग्राम को अफेक्ट करेगी नहीं। ओके, ये है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, और ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए एंडिंग पॉइंट। नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द राइटिंग सी प्रोग्राम। आई हैव ऑलरेडी ओपन विंडो। ओके, मैंने एक ऑलरेडी विंडो खोली रखी हुई है टर्बो सी की, वहां पे मैं चला जाता हूँ। राइट, सो फाइल, फाइल में जाके हम क्या क्रिएट करेंगे, न्यू ऑब्वियसली। सो मुझे एक नई विंडो देखने मिलेगी। डबल क्लिक ऑन ये दीज टू स्ट्रिप्स सो इट विल मेक इट फुल स्क्रीन। ओके, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा।
प्रोग्राम लिखने के लिए हम हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कहाँ से स्टार्ट होता है, void स्पेस मेन से। सो void स्पेस मेन नॉर्मल ब्रैकेट्स के बाद प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे कहीं पे जाके एंड होगा। प्रोग्रामिंग स्टाइल ध्यान से देखिए, पहले मैंने दोनों ब्रैकेट्स कर दिए हैं ताकि प्रोग्राम स्टार्ट और एंड का होगा मुझे पता चले। इसके अंदर सबसे पहले मेरी इंस्ट्रक्शन कौन सी थी, CLR आई एम राइटिंग इट अ बिट इनसाइड। ओके, मेरा इसे इंडेंटेशन कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ ब्लिंकिंग चल रहा है, एज यू कैन सी हियर, बट आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर। व्हाई? बिकॉज इट्स कॉल्ड इंडेंटेशन, इट्स कॉल्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ओके, और मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी थी, printf। wait, before writing second instruction we forgot something, the clear screen है उसकी डेफिनेशन किसके अंदर है, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशन किसके अंदर है, इंक्लूड stdio, सॉरी मिस्टेक, क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशन किसके अंदर है, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। और now we'll move on to our second instruction। हमारी second instruction कौन सी है, printf and then we have printf function complete semicolon, और इसके अंदर डबल कोट्स के बीच में आएगा मैसेज। व्हाट इज द मैसेज, हेलो वर्ल्ड। ओके, और हमारा लास्ट थिंग है गेट ch, सो इट विल वेट फॉर अस टू गेट अ कैरेक्टर। printf और get ch ये दोनों फंक्शन कौन से फाइल में डिफाइंड है, उसकी डेफिनेशन है इंक्लूड stdio.h, standard input output header file, that's why we write stdio.h। हमारा सिंपल सी प्रोग्राम रेडी है। ये हमारी स्क्रीन है, हमने प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है, टर्बो C++ में, एज वी हैव डिस्कस्ड इन थियरी लेक्चर और इन आवर लैब सेशंस, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, हम पहले प्रोग्रामिंग करेंगे टर्बो C++ में। तो आपको ये एनवायरनमेंट है या ये एडिटर है वो डाउनलोड करना है इंटरनेट से। इफ यू कैन नॉट फाइंड इट, so you can reach out to me, I'll provide you the link, you can simply download it and you can just click on next and install it। ये हमारा एनवायरनमेंट है टर्बो C++। नॉर्मल एनवायरनमेंट है, हमें सबको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज करना आता ही है। ओके, सिंपल उस तरीके से एनवायरनमेंट है जिसमें फाइल एडिट सर्च रन वगैरह मेनू है, जो हम ये मेनूज यूज करने वाले हैं। ओके, दीज आर सम मेनूज दैट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, सो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल नई फाइल क्रिएट करने की फाइल में न्यू, मैंने अपना प्रोग्राम लिख दिया है जो हमने डिस्कस किया था। प्रोग्राम में एरर्स नहीं करनी है, जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखना है कंप्लीटली। ओके, विदाउट इवन कैपिटल और स्मॉल मिस्टेक्स, क्योंकि सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसमें आप स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में, अगर मैंने क्लियर स्क्रीन को ऐसे लिखा हुआ है, मैंने सी कैपिटल किया हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्चुअल क्लियर स्क्रीन। हमारा क्लियर स्क्रीन क्या है, सी स्मॉल है। क्लियर स्क्रीन को हम शॉर्ट में CLR लिखते हैं, गेट कैरेक्टर को शॉर्ट में गेट ch लिखते हैं, और प्रिंट है वो मैसेज प्रिंट के लिए यूज होता है, कोई भी मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ओके, और हम लोग ऊपर क्या इंक्लूड करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ कि स्टार्ट्स हियर, व्हाट स्टार्ट्स हियर, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, और मल्टीलाइन कमेंट में हम क्या लिखेंगे, अपना नाम, बैच नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मल्टीलाइन कमेंट नीचे लिखता हूँ, ये मल्टीलाइन कमेंट का स्टार्टिंग है, ये मल्टीलाइन कमेंट का एंडिंग है। इसके बीच में हम सारी चीजें लिखेंगे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ओके, इसके बीच में लिखेंगे सारी चीजें, जैसे कि अपना नेम, रोल नंबर, बैच एटसेट्रा। ओके, और इसको रन करने के लिए क्या चीज है, कंपाइल एंड कंपाइल। ओके, इट विल सी 0 वार्निंग्स 0 एरर्स, शो कर रहा है कि इसमें कोई वार्निंग नहीं है, एरर भी नहीं है। आफ्टर दैट विल गोइंग टू रन एंड सिंपली रन इट। ओके, सो रन करने के बाद मुझे अपना आउटपुट शो करेगा हेलो वर्ल्ड। अभी भी आउटपुट स्क्रीन से गया नहीं है, क्यों नहीं गया है, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा है जब तक हम कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे, बाद में वो स्क्रीन पे से जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट टर्बो C and how things work। Just try this at home, we'll see next thing।